वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बांग्लादेश के दौरे के दौरान भारत के पड़ोसी पॉलिसी पर अहम बयान दिया। इन्होंने कहा कि जब भारत तरक्की करेगा तो इसके साथ तमाम पड़ोसी ममालिक भी तरक्की करेंगे। एस जयशंकर के मुताबिक वो मुश्तरका तरक्की, मजबूत ताल्लुकात और खित्ते में इस्तेहकाम के अज़्म का पैगाम लेकर बांग्लादेश गए थे। If India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. And yes, I mean, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान से मुतल्लिक़ सख्त बयान देते हुए कहा कि बदकिस्मती से भारत के कुछ पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई मुल्क बिला रोक टोक दहशतगर्दी को जारी रखने का फैसला करे तो भारत को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। एस जयशंकर के मुताबिक पानी की तकसीम का मुआहदा खैर सगाली की पॉलिसी के तहत किया गया था, लेकिन दबाव पर मोहित दहशतगर्दी ने अच्छे पड़ोसी होने के तस्वुर को नुकसान पहुँचाया। When you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed to a water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. So I think there is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors. कर्नाटक के जिला बेल्लारी में पेश आए तसादुम के मामले में जहां बाग शख्स के अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा किया है। अहले खाना का कहना है कि वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासरा ख़ानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। इस मामले पर इंतज़ामिया और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी के एमएलए जनार्दन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस के मुताबिक बैनर की तनसीब को लेकर पैदा होने वाली झड़प ने कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान बेल्लारी के रुकने असेंबली जनार्दन रेड्डी ने तसादुम पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। It's like earlier we used to say Bihar, Bihar, Bihar. But today in Bellary city also, because that Nara Bharat Reddy, his father, they're all always with the criminal kind of mentality only. Even 30 years before in Bellary city, even a common man could even, they could not have even, without their permission, even they could not even put a small step also. There is no peace, there is no law and order. That was the situation. We fought against them politically. So now today, by luck, he became MLA. Now the same qualities of his father. So he also wants to show just I'm a criminal. So yesterday they came to my home. बेंगलुरु में बेल्लारी तसादुम के मामले पर सियासी बयान सामने आया। काउंसिल में अपोजिशन लीडर सी नारायण स्वामी ने बेल्लारी में पेश आए वाक़े पर रद्दमल देते हुए कहा कि इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने रियासती हुकूमत से अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। See, Congress Gundas are planned to kill Mr. Janardhan Reddy, but he was not there. They wanted to create something. They went to his compound to put up a banner. The localites opposed it. After some quarrel between the groups, Sri Ramulu has entered to pacify. But they are not ready. They wanted to create some
something there after the gang war. So our Reddy. कर्नाटक के जिला बेल्लारी में तसादुम के बाद सूरत हाल अब काबू में है। रियासती वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने बताया कि इस वाक़े में मुलविस 11 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। वजीर के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल एहतियात के साथ मामले की छानबीन करें ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। Groups belongs to one group belong to Janardhan Reddy, another group belong to the local MLA Nara Bharat Reddy. They have fought each other on a banner issue, which was supposed to be Maharshi Valmiki's statue's inauguration. In that context, Nara Bharat Reddy's people, his supporters, they have put banners in that context. And Janardhan Reddy people supposed to have gone there and removed those banners. So that is how the fight has started, and they have pelted stones each other. And after that, somebody had fired, through a revolver or a gun, whatever. One person has died. So that I have ordered for an inquiry. In fact, I have also sent the Additional Director General of Police, Law and Order, to visit the spot and see what has happened, and have ordered for an inquiry and submit the report. In fact, to supplement the force, we have sent people from Davangere and Chitradurga. IG Davangere has gone there, and also we have supplemented the additional force from the India Reserve Battalion. So now it is peaceful. Once the report is... दिल्ली हुकूमत ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। दिल्ली के वजीर आशीष सूद ने ऐलान किया कि सरकारी असतज़ा से आवारा कुत्तों की गिनती कराने से मुतल्लिक झूठी मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वजीर का कहना है कि आवाम को गुमराह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के स्वघोषित बेरोजगार नेताओं पर हम बहुत ज्यादा बात करते नहीं हैं। आज आपसे इतनी सुबह बात करने का एक विशेष मंतव्य है। गवर्नमेंट हैज टेकन ए कंसिडर्ड डिसीजन टू फाइल ए पुलिस कंप्लेंट, टू फाइल एन FIR against the misinformation being spread by Aam Aadmi Party and particularly their national convener श्री अरविंद केजरीवाल। सरकार ने बहुत सुविचारित निर्णय लिया है कि हम दिल्ली में शिक्षकों के संदर्भ में फैलाए जा रहे फेक न्यूज दुष्प्रचार के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट, एक FIR जारी करें। हम स्वघोषित बेरोजगार नेताओं पर बहुत टिप्पणी नहीं करते, मगर अब की बार ये फेक न्यूज फैलाने का काम, इस दुष्प्रचार को फैलाने का काम यहां से दूर चंडीगढ़ के शीश महल में बैठकर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसलिए आपके पास आना पड़ा है। ये दुष्प्रचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट के रूप में किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार स्कूलों के शिक्षक दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। इसलिए सरकार ने बहुत सुविचारित बुलेट ट्रेन मंसूबे के समत एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णो ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 1.5 किलोमीटर तवील पहाड़ी सुरंग के आखिरी ब्रेक थ्रू का वर्चुअल मुशाहिदा किया। रेलवे वजारत के मुताबिक ये पालघर के तवील तरीन सुरंगों में से एक है और महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन मंसूबे की दूसरी बड़ी सुरंगी कामयाबी है। 508 किलोमीटर तवील मुंबई अहमदाबाद स्पीड रेल मनसूबाबंदी का वाहिद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसे जापान की तकनीकी और माली ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत ट्रेनें 320 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी और मुंबई से अहमदाबाद का सफर महज 2 घंटे 17 मिनट में तय किया जा सकेगा। करीब 90,000 से 1 लाख का रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहा है।
करीब 90,000 लोगों को रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। और कंस्ट्रक्शन के बाद में जब ऑपरेशन होगा इसका, तब भी इसमें रोजगार में, देखो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हमें देखना चाहिए इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करने वाला। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें फुल स्केल पर चलेगा, तब मुंबई से अहमदाबाद 1 घंटे 58 मिनट में पहुंचेगा। 1 घंटे 58, 2 घंटे से कम। और बीच में जितने शहर हैं, मान लो सूरत है, बड़ौदा है, सूरत बड़ौदा से अहमदाबाद या मुंबई जाना